بہوں کمزور ہے عامر مدینے آ نہیں سکتا بہوں کمزور ہے عامر مدینے آ نہیں سکتا خدا ہر پل گواہ رہندا خدا ہر پل گواہ رہندا ایدی مسکین چاہت دا خدا ہر پل گواہ رہندا ایدی مسکین چاہت دا ذرا کو شرف حاصل ہے نبی دے نال الفت دا میں دعویٰ کر نہیں سکتا بڑی وڈی محبت دا اب ہم باقاعدہ طور پر کتاب کی تقریب بھی کریں گے اوپن کریں گے یا نہیں اظہار خیال باقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں کتاب کا مجھے یہ کتاب جو ہے یہ کل رات کو ملی اور میں نے ان کو نہیں بتایا لیکن میں نے کچھ ان کے لیے لکھا ہے اور وہ میں نے کتاب پڑھی ہے اور اس کے بعد میں نے کچھ لکھا اور یہ اس لیے میں کر رہی ہوں کہ تھوڑا بلڈ اپ ہوتا ہے جب جن لوگوں کو کتاب ابھی ملی ہے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا ان کو کہ کتاب میں کیا ہے. آج کے صاحب کتاب کی کتاب جو ہے وہ کل رات ہی میں نے ذکر کر دیا تو اسرار کھلنے شروع ہوئے مجھ پر ان کی ذات کے. ایسا لگا کہ یہ ایک ایسی شخص کی شاعری ہے جو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا جس کا جسم مادی وسائل کے حصول کے لیے سرگرداں ہے اور جس کی روح خود اپنے آپ کو تلاش کر رہی ہے اور جس کی تلاش کا فوکل پوائنٹ یعنی مرکزی کردار جو ہے مرکزی نقطہ وہ عشق ہے. اور کیونکہ روح کا تعلق ہماری انٹیوشن آگہی اور ہماری لاشعوری مزاج سے ہوتا ہے تو یہ روح لاشعوری طور پر دنیا کو پیار محبت اور عشق کے آئینے میں ڈھونڈ رہی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا فہم تیرے عشق نے دیا مجھ کو سمجھ میں آنے لگا میرا مسئلہ مجھ کو. یہ کیسا فہم تیرے عشق نے دیا مجھ کو سمجھ میں آنے لگا میرا مسئلہ مجھ کو. اور پھر ان کا جو معروف شعر ہے جو کتاب کی بیک پر بھی ہے کہ یہی بتائے گی کیسے اٹھاؤں اگلا قدم میرے لیے تو محبت ہی استخارہ ہے. اور انہوں نے خود اپنے پیش رفت میں لکھا ہے کہ زندگی بھر پیار اور صرف پیار ہی کیا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا اور آگے بھی یہی کچھ کرنا ہے کہ ہمیں تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. اور پھر اس کے آگے یہ کہتے ہیں کہ یہ آئینہ ہے کہ جس میں دکھائی دو گے تم میں اس لیے تمہیں اپنی کتاب بھیجوں گا. تو یہ اس کا اسرار ہے عامر بیگ صاحب کا کتاب کا. دیوار پہ ٹیک نہ لگائیں ورنہ لائٹ چلی جائے گی. شکریہ بہت بہت. وہ ہم ڈسکس یہاں نہیں کر سکتے. اچھا یہاں پہ اسپیچ کے لیے ہمارے ننھے منھے مہمان ہیں اور وہ ہمارے مہمان ہیں ان کے مہمان نہیں ہیں ان کے گھر کے فرد ہیں وہ ان کے صاحبزادے ہیں. ابراہیم بیگ نے بڑے شوق سے جو ہے وہ اسپیچ لکھی ہے اپنی آج اس موقع کے لیے اور ابراہیم بیگ تشریف لائیں گے ماشاءاللہ. اور وہ I think he's 6 years old, right? 7. اور بہت بہت شوق سے وہ انتظار کر رہے تھے.
स्पीच मेरे पास नहीं है, आप यहाँ किताब रखी थी एक मैंने। ये है आपकी स्पीच, मैंने महफूज रखी थी, कमर की दाद है। I want to thank you all for being a part of celebration for my father's first book. I welcome and appreciate everyone who took the effort to join us from a local and a long distance, journeys leaving behind their loved ones. Amr Big has worked very hard on this book. He put in many hours, days, weeks, and even years to compose this book, to share with upcoming generations. We are proud of all his work. अरे नीचे कर दे माइक जरा। तो ठीक है, And thank each and every one of you to the radiant in this world with their wonderful world and ideas. एंड हो गया। Jazakallah khair. I think that's the best speech today. किसी भी पेरेंट्स के लिए सबसे फख्र का मकाम यही होता है जब उनकी औलाद उनको अप्रिशिएट करे या तारीफ करे। अब हमारे दूसरे स्पीकर तारिक कैसर साहब अफसाना निगार हैं और डॉक्टर हैं मरीन बायोलॉजी के। उनको दावत देती हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। अच्छा कैसर आप कैसर भाई। अस्सलाम वालेकुम। आमिर बेग से मेरी मुलाकात को आज कई वर्ष बीत गए। वो जब अपस्टेट न्यूयॉर्क में रहते थे तब भी वो इतनी दूर से मेरी अदबी महफिल में आते थे, शिरकत के लिए इतनी दूर से आते थे। आमिर एक जेन्युइन लिखारी है, अदब के मामले में बहुत पैशनेट है। वो नसर और नज़्म दोनों में यकसा महारत से लिखते हैं। उनकी किताब मोहब्बत इस्तिखारा है, शाया हुई तो उन्होंने मुझसे कहा मैं उस पर कुछ लिखूं। मैं नक़ाब तो नहीं हूँ लेकिन चंद सतूर लिख के लाई हूँ। मोहब्बत इस्तिखारा पढ़ते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि मोहब्बत जैसे लतीफ़ जज्बे को किस तरह बयान किया जा सकता है, वरना तो अच्छे इजहार मोहब्बत की सलाहियत नहीं रखते। मेरा ख्याल आमिर के अशार दिल को छू लेते हैं, जैसे किसी के साथ भी जाए हमें परवाह नहीं, हमें यकीन है इसका कि वो हमारा है। हमें यकीन है। यही बताएगी कैसे उठाऊं अगला कदम, यही बताएगी कैसे उठाऊं अगला कदम। मेरे लिए तो मोहब्बत ही इस्तिखारा है। आमिर के अक्सर गज़लें छोटे बहर में होती हैं
اور سہل ممتنع کی مثال ہے، یہ میں سمجھتی ہوں۔ جیسے یہ شعر ہم پہ الزام ہے تو اتنا ہے، تجھ کو دیکھا ہے، تجھ کو چاہا ہے۔ ہم پہ الزام ہے تو اتنا ہے، تجھ کو دیکھا ہے، تجھ کو چاہا ہے۔ اور یہ شعر اس تسلسل سے تجھ پہ شعر لکھوں، اس تسلسل سے تجھ پہ شعر لکھوں، لکھتے لکھتے کتاب ہو جائے۔ سب کچھ کہہ دیا آپ نے، لکھتے لکھتے کتاب ہو جائے۔ زبردست۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ عامر بیگ کتنی آسانی سے دل کی وارداتوں کو کاغذ پر منتقل کر دیتے ہیں۔ اس لیے بھی بھور ہوئے ناراض میں نے ساحل کا گیت گایا تھا۔ بہت خوب۔ آخر میں اس کتاب کی آخری غزل کے 2 اشعار جو عامر کے دل نشیں لہجے اور زبان پر عبور کی نشاندہی کرتے ہیں وہ سنانا چاہوں گی۔ جوبن پہ آئی رات کوئی بات کیجیے، جوبن پہ آئی رات کوئی بات کیجیے، کرنی ہے دل کی بات کوئی بات کیجیے۔ نظروں سے کہہ دیا جو لبوں پہ نہ آ سکا، آنکھوں سے باتیں کرتا، نظروں سے کہہ دیا جو لبوں پہ نہ آ سکا، ازراہ التفات کوئی بات میں عامر بیگ کو اس کتاب کی اشاعت پر بہت مبارکباد دیتی ہوں۔ لکھتے رہیے۔ بہت خوبصورت اظہار خیال۔ اور اب میں دعوت دیتی ہوں جوائنٹ سیکرٹری ہیں حلقہ ارباب ذوق نیو جرسی کی فرح کامران کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ یہ کتاب بھی مجھے ابھی ملی ہے اور اطلاع بھی ابھی مجھے ملی ہے کہ مجھے کچھ بولنا ہے، لیکن ابھی انہوں نے حوصلہ دیا کہ شروع کر دیا تو بس چند باتیں۔ سیدہ عارفہ کی ایک بہت خوبصورت وصول کرتی ہیں، ضرور آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا۔ ان کی ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ آدمی سے انسان تک کا جو سفر ہے اس کے درمیان کتاب ہے، اور وہی ایک وسیلہ ہے ہمیں جو قرآن کا حوالہ دیا کرتی ہے تو اسی حوالے سے ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے صاحب کتاب ہو جانا، کتاب سے دوستی، آپ سے کتاب سے دوستی ہے تو پھر آپ کو کسی دوست کی کمی نہیں رہ جاتی۔ تو اس حوالے سے ایک بہت بڑا اعزاز ہے عامر بیگ کے لیے کہ وہ صاحب کتاب ہو رہے ہیں، اور یقیناً ہم سب دوست احباب جو ہیں ان کے لیے بھی یہ باعث اعزاز ہے۔ باقی جو تخلیق ہوتی ہے، شجر تخلیق جو ہے اس کی 2 شاخیں ہیں، بلکہ شاید کئی شاخیں ہوں، نثری ہو یا شاعری ہو۔ اس میں سے جو تخلیق کار ہے وہ اس کا انتخاب جو ہوتا ہے نثر کی جانب یا شاعری کی جانب، وہ شاید شروع میں غیر شعوری طور سے ہی ہوتا ہوگا۔ یقیناً مامون بھائی بہتر طور سے اس بات کی وضاحت کر سکیں گے یا جواب دے سکیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ماحول اس کی تربیت کرتا ہے، پھر نکھار آتا ہے، پھر شاید آپ اسی میں ترقی کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو شاعری میں اور نثر میں دونوں جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اکثر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک چیز سے انسان انصاف کر سکتا ہے، دونوں چیزوں سے انصاف نہیں کرتا۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے نثر لکھنی شروع کی تو مجھے کہا بھی گیا کہ نثر نہ لکھو، نثر نہیں لکھو، شاعری متاثر ہوگی۔ تو ابھی تو شاعری کی کتاب ہے، اور چونکہ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ ان کا جو دوسرا مجموعہ ہے افسانوں کا وہ بھی آیا کہ آیا، تو بہت بڑی بات ہے کہ دونوں پیرائے میں اظہار ذات کر رہے ہیں۔ باقی ابھی کہہ چکی ہیں قیصر آپا ہونے کی بات، دہرانے والی بات کہ بہت سادہ اور دل پذیر ان کی شاعری ہے، آسان زبان، آسان الفاظ، آسان زبان، اردو پنجابی دونوں میں شاعری کرتے ہیں۔ باقی
आमिर बेग का जो इमेज होता ये है कि जब आप पहली दफ़ा किसी से मिलते हैं तो एक तस्वीर, आपकी जो आंखें हैं वो एक तस्वीर खींच लेती हैं, एक इमेज बना लेती हैं, और उसके बाद वो जितनी भी आपकी मुलाकात हो समहाउ वो पहला जो इमेज होता है वो आपके सामने होता है। तो मुझे वो 2019 याद आ रहा है कि जब आमिर बेग को हल्के में देखा था और माशाल्लाह बहुत जोश खरोश, और उसके बाद हमने देखा कि इनका वो जो जोश खरोश है वो मांद नहीं पड़ा, मुसलसल किसी न तरीके से ये लगे रहे तंजीम के हवाले से और लिखने के हवाले से, और शायरी भी हमने देखा कि मुसलसल करते चले जा रहे हैं। और फिर मतलब यकीनन ये हैरानकुन बात थी कि एकदम से ये साहिब किताब हो गए। मतलब एक बेचैनी जो थी वो हमेशा आमिर बेग में नज़र आती रही। कुछ अशार इन्हीं के जो मुझे अच्छे लगे फौरी तौर पे किताब से वो आपके सामने पेश करूँगी और उसके बाद इजाज़त चाहूँगी। आँखों में जितने ख्वाब थे सारे बिखर गए, आँखों में जितने ख्वाब थे सारे बिखर गए, दिल में चढ़े हुए थे जो दरिया उतर गए, दिल में चढ़े हुए थे जो दरिया उतर गए, वादों का पास इश्क में रखना ज़रूर था, वादों का पास इश्क में रखना ज़रूर था, मैं उनका क्या करूं जो कहकर मुकर गए। और ये शेर देखिएगा, ये शायरी और उस पे समुंदर का सामना, ये शायरी और उस पे समुंदर का सामना, कागज की नाव में इसे हम पार कर गए। ये भी इनका एक ख़ास जो अगला गज़ल है, बहुत आसान छोटी बहर, और इनका मिजाज है, मतलब ज़्यादातर गज़लें जो मैं इनकी सुनती हूँ वो इसी मिजाज की मुझे लगती हैं। खाक बेशक उड़ाइए साहिब, खाक बेशक उड़ाइए साहिब, फूल दिल का खिलाइए साहिब, और आप नाराज अच्छे लगते हैं, आप नाराज अच्छे लगते हैं, छोड़िए और जाइए साहिब, छोड़िए और जाइए साहिब, आपके बस में गढ़ नहीं मिलना, मसला मत बनाइए साहिब। तो बस काश के मैं कुछ मज़ीद यही एक पूरी पढ़ जाए, मजा आ रहा है आपके मुंह से सुनने का। ऐसा न हो कि आप बाद में सुनाएं तो लोग नहीं कोई बात लोग नहीं, कहेंगे फर्क आप तो बनाए। ये आपके मुंह से बड़ा अच्छा लगा। आपके मुंह से या ज़बान से ये खाक बेशक उड़ाइए साहिब, फूल दिल का खिलाइए साहिब, आप नाराज अच्छे लगते हैं, आप नाराज अच्छे लगते हैं, छोड़िए और जाइए साहिब, आपके बस में गढ़ नहीं मिलना, आपके बस में गढ़ नहीं मिलना, मसला मत बनाइए साहिब, और खाने दिल अगर पसंद नहीं, खाने दिल अगर पसंद नहीं, इससे फिर फूर जाइए साहिब, इससे फिर फूर जाइए साहिब, फिर फोर जाइए साहिब, सॉरी। दिल में जो है तजावज़ात गम, दिल में जो है तजावज़ात गम, इनको फौरन गिराइए साहिब, मैं वफादार हूँ ये दावा है, मैं वफादार हूँ ये दावा है, शर्त मुझ पर लगाइए साहिब, और अपनी दुनिया बनाएगा आमिर, अपनी दुनिया बनाएगा आमिर, इसकी दुनिया उसकी दुनिया से जाइए साहिब। ये थी जॉइंट सेक्रेटरी हलकार बाबर साहब की। और अब हमारे पास मौजूद हैं शाहिद कॉमरेड, इनसे मेरी बातचीत हो चुकी है, मेरे प्रोग्राम में भी आ चुके हैं, शायद इनको याद नहीं है लाइव शो में, एनीवे तो उनको मैं दावत देती हूँ। शाहिद कॉमरेड। जनाब सर, मेहमान ख़ुसूसी और आज के शायर शाम के, और इतनी खूबसूरत जाज़िब नज़र और तजुर्बाकार होस्ट जो हैं, मेरा ख्याल है कि हमें याद रहेंगी। और आप सब ख़वातीन हज़रात, आपका शुक्रिया। किसी भी शहर में और किसी भी कस्बे में या ख़ानदान में अगर कोई लिखारी आ जाए तो मैं समझता हूँ हमेशा उसने अपने ख़ानदान की, अपने कबीले की इज़्ज़त को बढ़ाया होता है, क्योंकि उसके साथ एक चीज़ बुनियादी है, और इज़्ज़त उसी को मिलती है जिसने सच का एतबार किया और उसको फैलाया।
और सच पर आप जो हैं हमेशा ये बात जान लीजिए, जिसके अंदर हौसला नहीं होता, जिसको अपने यकीन न हो कि मेरे लफ्ज़ों से कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, उस वक्त तक उसमें मज़ा नहीं आता। क्या बात है। आमिर बेग साहब ने अपने पेश लफ्ज़ में खुद लिखा है, कुछ चीज़ों का मैं गवाह हूँ कि जब इन्होंने ज़ानी तलम्मुज़ तय किया था हमारे नासिर साहब के यहाँ न्यूयॉर्क में, हम दुल्हा दुल्हन के घर में थे, मोहम्मद हुसैन और नज़मा के घर में, और उसी तकरीब थी, तो उन्होंने उस आदमी का तज़किरा किया कि जो उनकी ज़िंदगी में 2 उस्ताद आए हैं, फ़कीर साहब, और उनको भी सदारती तमगा मिला हुआ था, और हमारे आज के जो मेहमान आए हैं खसूसी तौर पर उन्हें भी सदारती तमगा मिल चुका है। ये एक चीज़ ऐसी है जिनके लिए सदारती तमगे जो हैं इससे कम पे ये वो नहीं करते। ये बहरहाल उनका मेयार तो खैर से भी बहुत ऊंचा होगा, मगर ज़िंदगी में खुदा ने उनको ये इज़्ज़त दी है और यकीनन उन्होंने अपने उस्ताद का ख्याल रखा होगा। और आज की इस महफिल में इन्होंने आपसे एक चीज़ बताई है आपको कि ये इन्होंने ज़िंदगी में कुछ वजूहात से शेर व शायरी तरक कर दी थी, डिबेटबाजी भी तरक कर दी, फिर ये आ गए थे सियासत में। तो जब आदमी सियासत में आता है, जो कि हमारी सियासी चीज़ें वो होती हैं जिसमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हुकूमत कार चलाने का तरीक़ाकार पता हो आदमी को, उसे किस तरह की ईमानदार आदमी चाहिए, उसे बदगुमाश चाहिए, चोर चाहिए, लुटेरे चाहिए, दूसरों की ग़ुलामी करने वाले चाहिए नहीं। वो फिर इंसान के लिए हमें नेक आदमी चाहिए होते हैं जो हमारे बच्चों का कौम का ख्याल करने वाले हों, हमारे ख़वातीन की इज़्ज़त करने वाले हों, आइन का एहतराम करने वाले हों। तो ये काम जो है इन्होंने उस सियासत के उस खारदार में कदम रखा और उनकी ज़िंदगी में अब तक भी ये शामिल है। ये इनका ताल्लुक आज भी उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि हम अपनी खुददारी को नहीं बेचेंगे, हम अपनी सॉवरेनिटी को नहीं बेचेंगे, हमें फ़ख्र है, ठीक है हम गरीब हैं, ठीक है हम लुटे पुटे हैं, मगर हमारे फैसले हमारी धरती पे ही होंगे। तो मैं आमिर साहब आपकी एक चीज़ ज़रूर इसमें एक है, ये बिल्कुल राह चलती चलती जैसे आ जाता है ना कि आजकल के दौर में जिस तरह हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं हमारे मुल्क पर, मैं चूँकि बीइंग एक्टिविस्ट ये मेरा फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द की बातें करें। ये जो गुलाब और ये इस तरह खुशबूयात वाली बात जो है उसके साथ ये भी है कि जो अंधेरा है, जो लोगों पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, जेलें हमारी भर चुकी हुई हैं, हमें कुछ हमारी कौम को पता नहीं कि कल क्या होगा, मगर आदमी को अपने अंदर एतमाद रखना चाहिए, ये धरती हमारी है और हमने ऐसी खिदमत करनी है। तो उस सिलसिले में उनका एक शेर है, जो बन पे आई रात कोई बात कीजिए, करनी है दिल की बात कोई बात कीजिए। क्या कहा? जो दिल की बात है, यानी जो सच है, जो आपके अंदर है, क्योंकि अगर आपने गलाजत भर ली दिल में तो आप ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेंगे। इसी तरह इनकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो इनके पूरी ज़िंदगी की जो कुछ ये सोचते हैं कि ये कहते हैं, खाक बेशक उड़ाइए साहब, फूल दिल का खिलाइए साहब, आप नाराज़ अच्छे लगते हैं छोड़िए और जाइए साहब। यानी हमें आपकी नाराज़गी इस शर्त पे मंजूर है कि आप जाएं यहाँ से। आपने चाहे लंदन जाना है, वाशिंगटन जाना है, CIA के दफ्तर जाना है, हमें आपकी ये नाराज़गी, आप जाइए। तो मेरा ख्याल ज़ाती तौर पर यही है कि हमारे शायर जो हैं, इनका जो किताब है, इनकी मुबारकबाद। एक चीज़ हमें ज़रूर मान लेनी चाहिए, इनके साथ इनका जो साथ है ज़िंदगी में, मैं आज उनको ख़ालिद तहसीन पेश करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बहुत शुक्रिया। और जो मुझे मालूम है कि यहाँ बहुत कुछ सीखे जाएंगे, क्योंकि मामून अहमद साहब हैं, मतरूका लफ्ज़ जो हैं उनके बारे में भी आपसे गुफ्तगू करेंगे और ये बताएंगे कि सही क्या है, और ये गलत-उल-आम को भी जो है बताएंगे कि आजकल गलत-उल-आम क्या है। सीखिए, सीखने की शान है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत और ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही, मेरे दिल में भी थी कि मामून साहब जहाँ बैठे हो वहाँ बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने थोड़ी सी हिम्मत कर ली। अब हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ऐसा करते हैं कि डॉक्टर हाफिज सलीम को दावत देते हैं कि वो तरन्नुम से आके हमें गज़ल सुनाएं। डॉक्टर हाफिज सलीम।
डॉक्टर साहब अच्छा हुआ है। समझ रहे हैं ना, यूफेमिज्म है। कोशिश कर रहा हूँ समझने की। नहीं आएगी लेकिन ये चीज जरूर है कि जैसे उन्होंने कहा कि आसान अल्फाज में लिखते हैं, हम जैसे ना समझ बेसौक लोगों के लिए तो जो है ना वो जो दिल के तार हिला की जो जल तरंग बजती है ना, कोई भी, मैंने तो ये पहली दफा किताब बाकी की तरह पहली दफा देखी, तो जो भी सबक उठाता हूँ ना तो वो समझते हैं कि कौन सी जो है वो इसमें कौन सा जो है वो कौन से अल्फाज जो है वो धुन में सुनाए जा सकते हैं। तो कोई भी उठाऊं आप सब सुना सकते हैं। तो कोई भी आप फॉर एग्जाम्पल ये उठा लेता हूँ, दिल जो इतना सुकून में रहता है, दिल जो इतना सुकून में रहता है, क्या खबर किस जुनून में रहता है, क्या खबर किस जुनून में रहता है। हम लोग जो है वो इस तरन्नुम को जो समझते हैं, ये जो ऑटोमेटिकली जो दिल के तार हिलाती है, तो ये हमारे लिए वो शायरी का एक पैमाना है। मुझको ऐसा लगा है उसके बगैर, मुझको ऐसा लगा है उसके बगैर, मेरी दुश्मन हवा है उसके बगैर, मेरी दुश्मन हवा है उसके बगैर। लेकिन इन्होंने मुझे एक गजल भिजवाई थी कि आपने पढ़नी है। मैं हैरान रह गया कि वो गजल जो है वो इस किताब में नहीं है। वो गजल जो उन्होंने मुझे भिजवाई कि ये आपने जो है वो सुनानी है, तो अगर आपकी क्षमा क्या कहते हैं समा खराशी ना हो तो मुझे अगर इजाजत दें तो मैं वो सुनाता हूँ जो इन्होंने मुझे भिजवाई सुनाने के लिए। वो तो खास थी ना आपकी। वो खास है जी, वो इसीलिए वो इस किताब में आई नहीं। आज इस्लाम कर दी। लो जी। आपको होनी चाहिए। अपने दिल को सरे बाजार न लाया जाए, अपने दिल को सरे बाजार न लाया जाए, आशिकी रिस्क नहीं है जो कमाया जाए, आशिकी रिस्क नहीं है जो कमाया जाए, जब्त कर कर के ये लावा न पकाया जाए, जब्त कर कर के ये लावा न पकाया जाए, चाहता हूँ कि मुझे आज रुलाया जाए, चाहता हूँ कि मुझे आज रुलाया जाए, इन मकानों को बचाने की जरूरत क्या है, इन मकानों को बचाने की जरूरत क्या है, ज़लज़ले में तेरी यादों को बचाया जाए, ज़लज़ले में तेरी यादों को बचाया जाए।
बारे में अगर आप बहुत जानते हैं, उसके बारे में अगर आप बहुत जानते हैं, उसके बारे में मुझे खुल के बताया जाए, उसके बारे में मुझे खुल के बताया जाए। वो तो झोंके की तरह छू के हमें जा भी चुका, वो तो झोंके की तरह छू के हमें जा भी चुका। कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है उसे घेर के लाया जाए, कैसे मुमकिन है उसे घेर के लाया जाए। आज वो गीत की सूरत है मेरे होठों पर, आज वो गीत की सूरत है मेरे होठों पर। जिसकी ख्वाहिश थी किसी रोज वो गाया जाए। अब समझ में आई कि इन्होंने क्यों किताब में नहीं रखा है कि ये किसी रोज वो गाया जाएगा, अगली किताब में ये गाया जाएगा। एक जमाना हुआ आमिर से मुलाकात हुए, अब ये गुम हो गए हैं। एक जमाना हुआ आमिर से मुलाकात हुए, अब वो किस हाल में है, अब वो किस हाल में है, कुछ तो बताया जाए। अपने दिल को सरे बाजार न लाया जाए, आशिकी रिश्क नहीं है जो खाया जाए। बहुत खूबसूरत तरह डॉक्टर हाफिज सलीम का, और बड़ा अच्छा कि आपने ये गजल शेयर कर ली, क्योंकि ये पूरी गजल एक सवालिया निशान, एक सवाल है, और FBI के हवाले कर देना चाहिए। वो एक पता लगा के इनको बताएंगे कि वो है कहाँ पे और हाल क्या है। आमिर को खुशहाल कर दिया। अब हमारे पास मौजूद हैं कामिल अहमद साहब, कॉलम निगार हैं, अफसाना निगार हैं, और सबसे बढ़कर आमिर भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं कामिल अहमद। शुक्रिया। देखिए, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, और शायरी मेरा मैदान है भी नहीं, सिर्फ सुनने की हद तक है। नसर के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनकी शख्सियत का थोड़ा सा आपको बता दूँ। आमिर साहब की 5-6 साल बल्कि 8 साल हो गए ये मुझे मिले, इनको मैंने वॉच किया और मैंने देखा कि है इनमें कुछ बात कि इनको पुश किया जाए। तो पहले तो मैंने इन पर जिम्मेदारी डाली कि भाई लिखना शुरू करें आप नसर कॉलम। तो ये भी कॉलम मेरे अखबार में लिखते हैं जिसे मैं लिख रहा हूँ, और वो कॉलम बहुत अच्छे होते हैं। आजकल हम लोगों ने पढ़ना लिखना तो पता नहीं, पढ़ना छोड़ दिया। ये सिर्फ आईफोन पर जो है वो भी अपने मतलब की चीज़ है तो देख लेते हैं, लेकिन किताबें ऐसी चीज़ होती हैं जो तारीख उन्हीं से बनती है। आज नहीं तो 50 साल या 100 साल के बाद लोग तलाश करेंगे कि देखिए उर्दू अदब क्या था, शायरी क्या थी, और अमेरिका में शायरी कैसे होती थी। तो ये किताबें ही काम आएंगी। जब इन्होंने ये किताब का ऐलान किया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा यार तुम तो अफसाने की किताब भेजी थी मुझे, ये शायरी की किताब कैसे आ गई?
अफसाने माशाअल्लाह जब किताब आएगी तो आप देखेंगे ये उनकी ज़िंदगी पर जगह जगह जहाँ भी ये दुनिया भर में गए हैं वहाँ कोई ना कोई कहानी इनके पास है। और मैं समझता हूँ जैसे अगर 1000 अफसाने भी लिखते तो वो भी कम रहते हैं। इनकी एक ख़ास बात ये है कि ये डॉक्टर हैं, लेकिन आप किसी बात पे भी इनसे बात करके देखें इनको पता होता है। मैंने कहा मैं नाला खुरद में रहा हूँ, कहले हाँ वो तो अकाड़ा, मैं अकाड़ा से रहे जहाँ भी। अच्छा मैं पुर्तगाल गया था तो ये अच्छा तो आपने वो खाया वहाँ का जो खाना है। इसका मैंने गया यार स्पेन में गए, मस्जिद कर्तबा में बैठे, रोना आता है। इकबाल साहब ने बहुत तवील नज़्म पढ़ी है, लिखी है, वो मैंने पढ़ी नहीं है मगर वहाँ नमाज नहीं पढ़ देते थे। उसके साथ मिला दिया उन्होंने बड़ा अच्छा, जैसे क्या कहते हैं वो उसको, और दीवार खाली कर दी और मस्जिद जो है वो चलने फिरने के लिए है। तो ये एक तरह से अपनी ज़ात में एक ज़ख़ीरा है हर चीज़ का। अदब शायरी कहीं नहीं, आज शायरी मैंने सुनी और इन्होंने मुझे जो जिस तरह सुनाई और आपने जो गाकर सुनाई, मज़ा आ गया। और हर लफ्ज़ और हर शेर बोल रहा था और इनकी कहानी भी बता रहा था, जो मुझे अंदाज़ा है, जो मुझे अंदाज़ा था कि चाहे ग्वाटेमाला हो या पेरू हो या स्कैंडिनेवियन कंट्री हो, हर जगह की इनके पास है कहानियाँ। और वो ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने यूट्यूब से देख के अपनी मनगढ़ंत है, वो असल वाक़यात है इनके पास। तो जब किताब आएगी इनकी तो आप यकीनन उसको देखिएगा और मज़ा लीजिएगा। सफरनामा है नहीं, अफसानों का मजमूआ है, वो है हकीकत पे ही होते हैं। देखिए कोई भी अफसाना आता है ना तो किसी की ज़िंदगी से कुछ लेते हैं, आप पिक करते हैं, उस पर लिखते हैं, तो वो हकीकत के करीबी होते हैं तकरीबन। मन घड़त तरीके से आप लिखेंगे तो वो होगा नहीं, वो मंडू कर सकते थे। बहुत सी चीज़ें उन्होंने नहीं देखी, लेकिन उन्होंने जो लिखा वो हकीकत थी, वो है ना जी, खोल दो जैसे अफसाना, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं और हमें फ़ख्र है कि आमिर बेग हम में हैं और ये अपनी ज़ात में एक महफिल है, समझ लीजिए। आज ही देखिए तन धना इन्होंने सब कुछ किया है अगर देखा जाए तो, और बड़े यानी कि फिर हमारी तबीयत भी ख़राब होती है, फिर कहते नहीं चलना है। आपको मालूम है न्यू जर्सी आना ज़रा मुश्किल होता है हमारे लिए। 2 वजह से, उसकी वजह 2 है। मैं शिकागो जाने से घबराता हूँ कि $170 का टोल बन जाता है आना जाना, लेकिन जाता उससे चुके प्लेन आप लेते हैं ना तो वहाँ बड़ी कोफ्त होती है, आपका दिल चाहता लड़ मरे किसी से, तो वहाँ पर जो हड़बम मचा होता है। तो बहरहाल वही तो वो होती है, तो ज़रा खामोशी रखना पड़ती है, इसलिए कि नहीं बोलने देती हूँ मुझे। एक आदमी बड़े दास्तानें होती हैं, उम्र तक पहुँचते पहुँचते बहुत कुछ होता है। पाकिस्तान की कोई बात नहीं करना है मुझे, वो शायद कामरेड कर चुके हैं। हरचंद के उनकी शायरी का वो नहीं था जो शायद का उन्होंने घुमा दिया। ये लिखने वाले के ऊपर और बोलने वाले पर होता है कि उसको इस तरह देखे, इन्होंने किसी और ज़हन में रखते हुए लिखी थी। मगर बहुत खूब है ये शायरी किताब, मुझे अब मिली है तो मैं अब पढ़ूँगा इसको, और कॉलम लिखना है तो मुझे पड़ेगा है जी। तो आपने बहुत यहाँ का बहुत ही यानी रौनक बख्शी, और ये इनकी सब बड़ी यानी कि इनके लिए एजाज़ कह लूँ मैं। इतने नामी ग्रामी लोग, किस किस का नाम लूँ मैं, अतीक सिद्दीकी साहब हैं, डॉक्टर शफीक साहब हैं, मामून अहमद हमारे बहुत ही बुजुर्ग साहब थे। मेरा इनका 72 से वाक़फियत है, अब इससे अंदाज़ा कर लीजिए आप, ठीक है जी। और यासीन साहब हैं जिन्होंने बड़े बड़े मार्के मारे हैं न्यूयॉर्क में, जब हम पैदा नहीं हुए थे, मतलब हम शामिल नहीं थे, अपने बीवी बच्चों के साथ लगे हुए थे उन कुछ कर लें, है ना जी। तो आज मैं जब सुनता हूँ तो वाकई लिखने को दिल चाहता है सबके लिए, और कभी कभी मैं नाम भूल जाता हूँ, सब पीछे बैठे हुए हैं। और ये जो हैं ये तो कमाल के, ये तो टीवी के ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम दिए और बहुत अच्छा यानी इनका वो है फराह कामरान, सॉरी
कुछ थोड़ा सी डायमेंशिया 82 साल में हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक है, तो इजाज़त चाहूँगा, बस ज़्यादा मैं क्या